Rupesh Jain, Rumisha, Samriddhi Sati, Soumen Raul, Shivan Sharma, Shravani, and Vedanti Sharma. So right now there are 23 members. I think you have downloaded and extended the node extension to your Chrome browser. How many of you have done? एक्सटेंशन कितने लोग ने डाउनलोड करके क्रोम में ऐड? अच्छा, जितने कर लिया है काम करो, रेज योर थंब. Sir, your voice is not clear. नहीं अपना है. यस सर, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है. क्लियर because of network speed will come, but it will come after time. ठीक है, थोड़ा कट के ही आएगी. बाहर बारिश हो रही है इसलिए है. जब बारिश होगी, तूफान आएगा तो आवाज कटेगी. Okay, so now I am going to present my screen. ठीक है, so when I will present screen, wait for a few minutes and then we will start our class. Now I can see Ritu Rohil also. आवाज आ रही है मेरी? सबको आ रही है? Okay, so here I am going to present my screen. Suhanipal also joined. आपके स्क्रीन में आ रहा है? You are presenting? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I am going to present, and before that I would like to take your attendance. ठीक है? So first let me take your attendance. For 26 members I have taken attendance. And actually attendance should be taken. एक स्टार्टिंग में, एक बीच में और एक लास्ट में. ठीक है, तो अटेंडेंस 2-3 बार हो जानी चाहिए. तो मैं now I'm just opening the PowerPoint. The PowerPoint is the PowerPoint visible to you? क्या आ रही है? हेलो, I'm going to present my screen. One more stop presenting first. It is a problem while presenting the screen. Once more, I am going to present. For that, I'm going to stop the video and then I will start presenting. So tell me what
सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। यस सर। सर काफी कट कट के आ रही है आवाज। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। सब बार बार रुक जाता है बीच में। हाँ सर। फिर रुक गया। अरे अभी तो मैं कहूँ आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? सर मोलैरिटी की स्लाइड आ रही है। मोलैरिटी की है। अब मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? यस नो सर। सर। यस सर। यस सर सर। मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नो नहीं आ सर। रहा। सर यस सर मेरी पे भी नहीं। सर मेरी स्क्रीन में भी कुछ नहीं आ रहा। सर अब आ गया। आ गया। यस सर। हाँ सर आ गया। और और किसी को किसी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है? Okay, now I have to start. So molarity is study headache. मोलैरिटी के लिए पढ़िएगा। मोलैरिटी आपने कल पढ़ लिया था। सर आपके अलावा किसी और का माइक भी ऑन है। सर खुशी का है सर किसी शायद। का अपना माइक बंद कर, इसीलिए आज करिए। जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लो सब लोग। जो आपको मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है ऑन। When all the mic will be switched on, switched off, the audio quality will be better. Okay, so I'll Disha, you just unmute your mic and guide me when the class is going on. जब मैं आपको कुछ भी पूछूं तो आप मेरे से बता देना, ठीक है? यस सर। तो इस on the screen, the next method of expressing concentration is formality. What is formality? Formality of a solution is defined as the number of formula units of ionic solutes present in 1 liter volume of solution. What is formality? Formality is the number of formula units of ionic solute. What is meant by formula units? Formula units is similar to number of moles, but this terminology is used only for ionic compounds. If the compound is covalent compound, if the compound is coordinate compound, then instead of formula unit we use the term moles. For ionic compounds also we use the term moles, but specifically for ionic compounds we use formula units. For example, one formula unit sodium chloride is 1 NaCl unit. ठीक है, 1 NaCl यूनिट के लिए यूज करेंगे हम। आयनिक कंपाउंड में हम फॉर्मूला टर्म यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सो मैथमेटिकली फॉर्मेलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फॉर्मूला यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ मोलैरिटी। जैसे मोलैरिटी होता है 100% सेम वैसे ही होता है, बस मोलैरिटी को आयनिक सॉल्यूट्स के लिए हम लोग फॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो फॉर्मेलिटी इक्वल्स WB मींस वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। इफ द वॉल्यूम गिवन इज इन मिलीलीटर देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 in the numerator. So the equation becomes formality equals WB into 1000 upon MB into V in ml, where V is A plus B, means volume of solvent as well as
the volume of solute added together. Now, formality is similar to molarity. However, it is used for expressing the concentration when the solute is ionic salt like NaCl. In formality, number of gram formula unit mass is used in place of molar mass. जो हम बाकी कंपाउंड्स के लिए मोलर मास टर्म यूज करते हैं उसको यहाँ पे फॉर्मेलिटी के केस में क्या बोलते हैं, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास. ठीक है, इट इज द सेम मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. नाउ since it is exactly similar to that of molarity, therefore the concept of formality is merely a formality. जब भी आपसे फॉर्मेलिटी निकालने के लिए बोला जाए तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी ही कैलकुलेट करना है. बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है कब, जब हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं. देन इन दैट केस वी कॉल मोलैरिटी एज फॉर्मेलिटी. सो हाउ इज दिस पिक्चर, हु कैन टेल मी ये पिक्चर कैसी लग रही है आपको पीपीटी में जो है. सर ये गेल कैंपस की है शायद. एब्सोल्युटली करेक्ट, गेल कैंपस की है जो नाइट लैंप लगाते हैं. एंड दिस फोटो इज टेकन अप बाय मी बाय विद माय कैमरा, माय मोबाइल. अच्छी लग रही है क्या आपको? यस सर. यस सर. Yes, sir. यस सर. क्या कि सर बिल्कुल शानदार. क्लास के बीच बीच में थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने डाल दिया था पीपीटी में. फाइन. सर, तो ये हाँ हाँ बोलो. सर मुझे कोई पिक्चर दिख ही नहीं रही है. पीपीटी नहीं दिख रही आपको? नो सर. कौन बोल रहा है? नेहा. नेहा. बेटा सबको दिख रही, आपको नहीं दिख रही, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कुछ आपकी साइड से. एक बार ठीक है सर. नेहा एक काम करो, जहाँ पे पीपल है पीपल को क्लिक करो और पीपल के नीचे होगा क्या कि नागेंद्र तोमर प्रेजेंटेशन को क्लिक करना, तो आपकी स्क्रीन में शायद आ जाएगा. भूल गए होंगे, यस सर. करके देखो. आप नागेंद्र तोमर वाले पे क्लिक मत करना, पिन मत करना, नागेंद्र तोमर प्रेजेंटेशन को पिन करो. सर उसी को करके रखा है फिर भी नहीं आ रहा. ओहो. सर मैं एक बार लीव एक बार करके फिर से ज्वाइन करती हूँ. बिल्कुल 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 लीव करके ज्वाइन करो, कुछ नेटवर्क एरर है बेटा. ठीक है, तो शैल आई प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड. दिशा, यस सर. अगर किसी को स्लाइड आने में देरी होगी तो मुझे बोल देना, आई विल वेट. तो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड. अभी आ रही है आपकी स्क्रीन पे. नाउ इज इट विजिबल टू योर स्क्रीन? यस सर. यस सर. Okay. If anyone is having problem to see this slide, just open your mic and tell me with your name. इस तरह अभी नहीं आई है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा. ओके, सो आई थिंक सबकी स्क्रीन पे आ गई है. सर. हाँ सर पिछली वाली स्लाइड लगाना, मैं 1 मिनट एसएस लेना भूल गया था. अच्छा, ये ठीक है, भेज दिया, देख लो आ गई. और उसके बाद अपना माइक बंद कर लो. 1 मिनट सर. For every PPT, you should take the screenshot because this will help you to make your notes. Mohit, have you done it? Yes sir. Okay. So, Neha, are you there? यस सर. अभी स्क्रीन आ गई आपके? यस सर. ये पिक्चर दिख गई आपको गेल वाली? सर गेल वाली पिक्चर तो अभी भी नहीं आई. फॉर्मेलिटी वाली वो साइड में आ रही है पूरी. इन गेल वाली पिक्चर अभी भी नहीं आई. ये फॉर्मेलिटी वाली स्लाइड के हाफ स्लाइड में लेफ्ट साइड में ब्लू कलर से एक आई होगी ना, इसमें लाइट जल रही है, ऊपर एक स्क्रीन आ रही छोटी सी, एक छोटा सा. नहीं, वो अभी भी पूरी ब्लैंक ही आ रही है. अच्छा अच्छा, फॉर्मेलिटी आ रही है. यस सर. ओके, तो फॉर्मेलिटी का आप स्क्रीनशॉट ले लो. यस सर, ले लिया. Fine. So I am going to next slide now. Next slide is molality. Have you got this slide, all of you? यस सर.
Yes, Yes, sir. sir. Okay. So what is molality and what is difference between molality and molarity? We have to try to understand the main difference between molality and molarity. Earlier that we discussed was molarity, R-I-T-Y. Now we are going to discuss molality, L-I-T-Y. Molarity is represented by symbol small m. ठीक है? Molarity of solution can be defined as the number of moles of solute present in 1 kg mass of solvent. मोलैरिटी में क्या था? 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ क्या है? 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट. डिफरेंस समझो आप. मोलैरिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्वेंट नहीं था वहां, सॉल्यूशन था. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मैथमेटिकली मोलैरिटी इक्वल्स number of moles of solute upon weight of solvent in kg. Now, if the weight of solvent given in the question is in grams, then we have to multiply by 1000. So molality, अच्छा, there is a mistake in here, second typing here. Here it should not be R, it should be L. Molality, small m, equals WB into 1000 upon MB into WA. ठीक है? ये स्मॉल m सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोलैलिटी है. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है टाइपिंग में, वो r की जगह l कर लेना आप. तो मोलैलिटी इक्वल्स WB into 1000 upon MB. MB means molar mass of solute, molecular mass of solute. WB means weight, given weight of solute. WA means given weight of solvent, not solution, in grams. So unit, what is unit of molality? Mole per kg or mole kg inverse, or simply represented by small m. Small m means molar. जिसका माइक ऑन है माइक बंद करो. अच्छा, दिशा का होगा. ठीक है, दिशा बंद कर लो अभी माइक बेटा. ठीक है, तो स्मॉल m also stands for molar. Molar is the unit of molality. अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट मीन बाय मोलर सॉल्यूशन, molar solution is that solution whose molality is 1 या whose concentration is 1 mole per kg. Similarly, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट वी मीन बाय मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन मींस a solution whose concentration is 1 molar or 1 mole per liter. Now note that it is better method of concentration of a solution than molarity. Molarity is better method of expressing concentration of solution than molarity, as it remains unchanged even with increase or decrease in temperature. ठीक है, हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि molarity depends upon temperature. It changes with change in temperature, but molarity do not change with change in temperature. Why? Because mass remains unaffected with increase or decrease in temperature. Mass of solvent will not change with change in temperature. There, in case of molarity, volume was changing. Here mass is there, so it will not change. So molarity is better method of expressing concentration of solution than molarity, as it remains unchanged even with increase or decrease in temperature, whereas molarity changes with change in temperature. Is it clear? Disha, is it clear? Yes, sir. Okay. So now I am just bombarding a question to you all. Take your pen and copy and try to solve this question. Here comes your question. Raj Ojha, you may read the question. Calculate the molarity and molarity of 93% H2S4 white by volume. Okay. The density of the solution is 1.84 gram per milliliter. Correct. So I'll give you 2 minutes to solve this question. Try fast, quick. Start.
In this question, you have to find out molality as well as molarity. The concentration mass by volume of H2SO4 is 93%, and the density of solution is 1.84 gram per ml. 93% H2SO4 by volume means 90 gram of H2SO4 is present in 100 ml of H2SO4. आपको कैसे पता 100 ml होगा? तो डेंसिटी ग्राम पर ml है। आपको देखना पड़ेगा डेंसिटी यूनिट क्या दी हुई है, ग्राम पर ml। इसका मतलब अगर 100 ml H2SO4 है तो उसमें मास ऑफ H2SO4 कितना होगा? 93%. This is a hint. Now you try to solve. I think the clock says that 2 minutes are over. So may I send you the answer? Check. Or I should wait further. So I am sending this answer. Yes. Are you able to see the answer on your Yes, screen? sir. Yes, sir. Okay. So now you see. Try to listen. 93% H2SO4 weight by volume means if mass of H2SO4 equals 93 gram, then the volume of solution is equal to 100 ml. और 100 ml equals 0.1 liter. Okay. आप बोलोगे सर ये 100 ml कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में दिया नहीं है। और आपने 100 ml ही क्यों लिया, आपने लीटर क्यों नहीं लिया? इसलिए कि डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml में दिया है और 93% का मतलब क्या है? 93 ग्राम और वेट बाय वॉल्यूम दिया है। इसका मतलब वेट लेना है ग्राम में, वॉल्यूम लेना है ml में, क्योंकि डेंसिटी में ml है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml इक्वल्स 0.1 लीटर। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स 93 ग्राम अपॉन इट्स मोलर मास। ये मोलर मास किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का। सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। 93 gram upon 98 gram whole upon 0.1 liter. This gives the value of molarity and this comes to be 9.49 mole per liter. कितने लोगों का ये आंसर आ गया था मोलैरिटी का? 9.49। आया था किसी का आंसर 9.49 मोल पर लीटर? सर ml में रख दिया था जल्दी जल्दी में सर, मतलब कितना आ गया था जल्दी जल्दी में? सर ml में सर 949 कुछ ऐसा आ रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना नहीं, अदरवाइज आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस सर, वही भूल गया। नीचे वैल्यू ml में रखोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप उसको लीटर में पहले कन्वर्ट कर लो, या क्या करोगे नीचे ml में वैल्यू पुट करके ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। नाउ मास ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स 100 ml सॉल्यूशन का मास कैसे निकालें, क्योंकि मोलैरिटी के लिए तो आपको क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। इसलिए क्या करेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। मास इक्वल्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज गिवन 1.84 ग्राम पर ml and the volume is 100 ml. This gives the mass of solution 184 ग्राम। ये मास किसका है? सॉल्वेंट का नहीं है, ये मास आएगा सॉल्यूशन का। 184 ग्राम is the mass of solution. So what will be mass of H2SO4? It is given in the question 93 gram. This is solute. Mass of solvent यानी mass of water कितना होगा उसमें? Mass of solution 184 में से 93 को माइनस कर देंगे। तो 184 ग्राम minus 93 gram gives the mass of water 91 gram. Now you got the mass of solvent, you got the mass of solute, you know the molar mass of solute. You can easily find molarity. So molarity equals 93 into 1000 upon 98 into 91.
अभी ऊपर 1000 क्यों किया? क्योंकि मास यहाँ पे 91 ग्राम में है, केजी में नहीं है, इसके ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया। क्लोज योर माइक, जिसने भी माइक ऑन किया माइक बंद कर लो। तो 93 into 1000 upon 98 into 91. This gives the value 10.43 mole per kg or molar. ठीक है? In this way we can solve this question based on molality. Now I am moving to next slide. Have you taken the screenshot of this, all of you? Screenshot ले लिया क्या? No, sir. one Yes, minute. sir. Okay. So next slide is this. Though it is not in our 11th standard course, but since it was a demand in the previous class that I came to know from your side, I just included this slide also, normality. Today only I added this slide. हालांकि नॉर्मेलिटी से क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ना तो ये 11th में है ना ही 12th में है। आप लोग पढ़ लिए थे रेफ्रेशर्स वगैरह में, इसलिए मैं इसको डाल दिया आज। अदरवाइज इसमें से क्वेश्चंस नहीं होंगे, फिर भी आप पढ़ लीजिए। स्क्रीन पे आ गई नॉर्मेलिटी नेहा? Yes, sir. ओके, शिवान शर्मा आपके स्क्रीन पे आ गई? Yes, sir. ओके, तो फाइन। Normality of solution can be defined as the number of gram equivalents of solute present in 1 liter volume of solution. देखो डेफिनेशन में डिफरेंस देखो, इट इज सिमिलर टू मोलैरिटी, RITY, बट डिफरेंस क्या है? वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट होता है। इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देयर इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट ये न्यू टर्मिनोलॉजी है आपके लिए, अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है। So normality of solution can be defined as the number of gram equivalents of solute present in 1 liter volume of solution. Here again the solution is volume of solution is there and it should be 1 liter. Mathematically normality equals gram equivalents of solute upon here is a mistake again. ये WA नहीं आएगा, VA आएगा और यहाँ पे kg नहीं आएगा, it should be in लीटर। ये पीपीटी बनाते वक्त मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट कीजिएगा आप, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या आएगा? नॉर्मेलिटी इक्वल्स ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन VA इन लीटर। आप अपने से करेक्ट कर लेना लिखते हो बेटा, ठीक है? ये एडिटिंग करते वक्त थोड़ा गलत मिस्टेक टाइपिंग है। नाउ नॉर्मेलिटी N इक्वल्स WB into 1000 upon equivalent mass. M equivalent means equivalent mass into again WA की जगह पे क्या करेंगे? V, VA नहीं, V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे लीटर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? मिलीलीटर आएगा, क्योंकि 1 ग्राम ऊपर 1000 है। इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं, ओरली बता देता हूँ, आप इसको कर लेना। ये पीपीटी बनाते वक्त टाइपिंग मिस्टेक है। पहला फर्स्ट लाइन में जहाँ कर्सर है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V लिखना, VA मत लिखना। V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देन सेकंड इक्वेशन में नॉर्मेलिटी इक्वल्स WB into 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास into V in ml रहेगा। ध्यान, ये नोट्स लिख के करेक्ट कर लेंगे कि दोबारा इसको करेक्ट करके भेजना पड़ेगा पीपीटी आपको, कर लेंगे। तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज अगेन चेंज, ग्राम इक्विवेलेंट पर केजी नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। वो एक जगह चेंज नहीं किया ना, सब जगह आ रहा है। यूनिट इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और नॉर्मेलिटी। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, अभी मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ। यूनिट क्या है नॉर्मेलिटी की? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये केजी यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह लीटर लिख लेंगे आप। आ गई मेरी आवाज निशा? यस सर, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अरे अभी आ रही है कि नहीं आ रही? अभी दोबारा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर अभी तो आ रही है, जब आप समझा रहे थे जब नहीं आ रही थी। अच्छा, तो यहाँ पे जहां भी WA लिखा है उसको भी करना है और जहाँ KG लिखा है वहां पे लीटर लिखना है।
जहाँ पे जी लिखा है वहां पे ml करना है, ठीक है। WA की जगह पे V लिख देंगे बस, जहाँ भी WA लिखा है उसकी जगह V लिखेंगे, जहाँ भी kg लिखा है वहां पे लीटर लिखेंगे, जहाँ ग्राम लिखा है वहां पे ml कर लेंगे, बाकी सब सही है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट मास होता कैसे, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इक्विवेलेंट मास, ये इसका अलग अलग तरीके हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स मोलर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन इट्स वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स मोलर मास अपॉन वैलेंसी। जैसे मान लीजिए सोडियम का निकालना है, सोडियम एलिमेंट का क्या होगा इक्विवेलेंट मास? सोडियम का मोलर मास 23, वैलेंसी 1, तो 23 अपॉन 1 इक्वल्स 23। द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, एसिड से हो रहा है का कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल्स मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड? बेसिसिटी ऑफ एसिड मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट इन इट। उसमें कितने H प्लस आयन ऐसे हैं जो रिप्लेस किए जा सकते हैं। जैसे H2SO4 में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने होंगे? 2। HCl में कितने होंगे? 1। में कितना? 1। एसिटिक एसिड CH3COOH में कितने होंगे? 1। रिप्लेसेबल H प्लस वही होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं होते, ठीक है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम वही होंगे H प्लस आयन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल टू मोलर मास अपॉन इट्स बेसिसिटी, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, किसी भी बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। Acidity of base means number of replaceable OH negative ion present in it. For example, you can see equivalent mass of CaOH whole twice, calcium hydroxide. क्या है ये? It's a base. इस फॉर्मूले में OH negative है। हमने पढ़ा Arrhenius concept of acid and bases. According to that concept, any substance which can release OH negative ion in aqueous medium are bases. ठीक है। So equivalent mass of CaOH whole twice equals molar mass of CaOH whole twice upon acidity. Acidity का मतलब number of replaceable OH। इसमें कितने OH नेगेटिव आयन निकल सकते हैं? 2। तो मोलर मास कितना, इक्विवेलेंट मास कितना जाएगा? मोलर मास of CaOH whole twice is 74 divided by its acidity 2. Why acidity 2? Because there are 2 OH negative ions. This gives value 37 gram per equivalent. Equivalent mass of CaOH we can find out in this way. Similarly, equivalent mass of H2SO4, this is acid. कैसे निकालेंगे इसका? मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो मोलर मास is 98 and number of replaceable H plus ions. Both these hydrogen atoms are bonded to oxygen. जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होते हैं। So basicity of H2SO4 is 2. So 98 divided by 2. This gives the value 49 gram per equivalent. In this way we can find out the number of gram equivalents of any acid or equivalent mass of any acid. Now fourth point, equivalent mass of salt. How can we find out equivalent mass of salt? Molar mass divided by total positive charge on the cation. किसी भी सॉल्ट का जब इक्विवेलेंट मास निकालना कैसे करेंगे? सॉल्ट का जैसे NaCl है, NaCl का पहले मोलर मास निकाल लेंगे, तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा? कैटायन पे Na प्लस पे +1 है, इसलिए डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे। CaCl2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा? CaCl2 का मोलर मास निकालेंगे अपॉन चार्ज ऑन Ca, दैट इज प्लस। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन से डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। So next, normality of dilution of solution. It is similar to that of molarity. Molarity में क्या था? M1V1 equals M2V2. यहाँ normality क्या हो जाएगा? N1V1 equals N2V2.
or N2 equals N1 V1 upon V2. Here N1 is the initial normality, V1 is initial volume of the solution. After addition of some more quantity of water, the normality changes to N2 and volume changes to V2. If we know N1, V1 and V2, then we can easily find N2. So N2 equals N1 V1 upon V2, like this. So similar equation, normality of mixing of two solutions. If there are two solutions of same components of different normalities, then and they are mixed together, how can we find out the normality of resultant solution? This is equation used for that. So N1 V1 plus N2 V2 equals N3 V1 plus V2. So N3 equals N1 V1 plus N2 V2 divided by V1 plus V2. Clear? Disha? Yes, sir. Okay. So again, I am going to ask you a question. What do you mean by normal solution? Ritu Rohila may answer. नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर जिसमें सॉल्यूट पूरा डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में. अच्छा, I got your answer. Very good. Shravani, tell me the answer. What do you mean by normal solution? Jaldi, fast. Are you there, Shravani? Yes, sir. What is normal solution? Okay. So I'm moving to next candidate, Samriddhi. Jaldi, Sir, bolo. What do you mean just- by normal solution? सर हाँ, जिस सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट ग्राम सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाए. अच्छा, very good. I'm just taking your answers. Narendra Odha, unmute your mic and tell me. Narendra Odha, are you there? I think he's left. Nishant. Yes, sir. Sir, normal Bolo, solution what do you is mean by normal? sir, normal solution is a solution in which only one solute and one solvent are mixed. Okay. Then next candidate, I'm moving to Ronit. Sir, 1 gram of gram equivalent. Sir, 1 gram equivalent dissolved in 1 liter of solution is normal solution. Very good, very good. Correct answer. So, अब नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि उसमें एक सॉल्यूट डिसॉल्व है. नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है. ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए. A normal solution is that solution whose normality is 1 gram equivalent dissolved in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, or whose normality is 1 normal. Very simple question. So आप इसका देख लीजिए. I'm sending normal solution. आगे पीपीटी में definition. A solution Yes, whose sir. normality is 1 normal. सर नहीं आई. Normal solution. सर नहीं. सर नहीं आई स्लाइड. अरे जो स्लाइड थी उसी स्लाइड में आ गया नीचे. हाँ सर. जो स्लाइड थी उसी स्लाइड में नीचे आया. नॉर्मल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन हुज नॉर्मेलिटी इज 1 नॉर्मल इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन. ठीक है, 1 नॉर्मल का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? So now moving, here are some relationships for interconversion of different methods of concentration. ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिससे हम शॉर्टकट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इनको यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी, डेंसिटी एंड मास ऑफ ए सॉल्यूशन. व्हाट इज रिलेशनशिप? मोलैरिटी इक्वल्स mass percent. Mass percent means W by W percent.
weight by weight percent. So mass percent into density into 10 upon molar mass of solute. स्क्रीनशॉट ले लो। आप बहुत शॉर्टकट में न्यूमेरिकल फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल्स mass percent into density into 10 upon molar mass of solute. Next, the relationship between molarity and molality. Capital M means molarity. Molarity equals 1000 into D. D means density of solution upon square bracket small bracket 1000 upon molality bracket close plus WB means given weight, given mass of solute upon molar mass of solute. तो अगर मान लीजिए कभी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है द सॉल्यूशन, जैसे सपोज 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है किसी सब्सटेंस, कन्वर्ट इट इनटू मोलैरिटी, कन्वर्ट द कंसंट्रेशन इनटू मोलैरिटी, तो लंबा प्रोसेस होता है यूनिटरी मेथड सॉल्व करने के लिए। आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करके सॉल्व करते हैं। So molarity equals 1000 into D upon 1000 upon M plus WB upon MB. You can take a screenshot and finally you can write it in your notes. Then relationship between molarity and mole fraction. How can you convert molarity into mole fraction and mole fraction into molarity? So molarity equals XB means mole fraction of solute. XB means mole fraction of solute. XB into 1000 into D. Here D stands for density whole upon number of moles of solvent into molar mass of solvent plus number of moles of solute into molar mass of solute. Here again सेकेंड टर्म में NaMb लिखा है, ठीक है, Na की जगह पे Nb कर लो आप। XB एक बार रिपीट कर देता हूँ, XB into 1000 into D होल अपॉन NaMa प्लस NbMb। Na नहीं रहेगा, सब टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सो इट शुड बी NbMb। नाउ नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, एक मोलर सॉल्यूशन को नॉर्मल सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए रिलेशनशिप क्या है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास इक्वल्स नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। आपको तीन क्वांटिटीज पता रहेंगी, चौथी निकाल लेना है, दैट्स ऑल। So next slide. What is there on screen? Flowers. Rose. This is for you. This is for you all. And next slide अगर इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, Sairam. So in this way, this chapter now comes to an end. In the next class, we will start periodic structure of atom. अब इसके नोट्स आप बना लेना पूरा complete and try to solve as many numericals as you can. Okay? Now I'm coming back to the meeting. I'm stopping sharing. Stop sharing. We are back to meeting. So again, I'm just enabling the grid view. I can see each one of you. So how was today's class? Were you able to understand the things? All of you? Yes, sir. अरे जल्द Sir. फटाक से अपना कैमरा ऑन करो, तब तो आपके एक्सप्रेशन दिखाई देंगे, मुझे दिखाई देंगे। ओके, तो आज की क्लास समझ में आ गई सबको? Yes. Actually, when I am
Yes, sir. Actually, when I am presenting at that time, nothing is there on my screen. Only PPT is there. उसमें समझ नहीं आता कि किसको क्या है, इसलिए एक कोई ऐसा चाहिए होता है जो कि गाइड करता रहे। ठीक है, आप ग्रेड व्यू में हो तो मेरे ग्रेड व्यू में देखिए सब लोग, सबका वीडियो दिख रहा है मुझे, सबके चेहरे दिख रहे हैं, क्या क्या एक्सप्रेशन है वो सब दिख रहा है मुझे। ठीक है, वंस मोर आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस। Okay, so the time says it is 3:49 p.m. and your time is over. You have to log in for next class also. So all of you join your hands, close your eyes and start Shanti Path for this class. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. Now you may leave one by one. Sairam sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sai Ram. Thank you, sir. Sairam, sir. Sai Ram. थैंक यू सर। Sai Ram. Devraj, leave. इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि अपने आप हो जाएगा वो?